एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल रूडीज द लीगल वर्ल्ड। और आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबकी हेल्प करने के लिए विद फंडिंग चैप्टर 9 विच इज़ फॉरेन फंडिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस and we would understand what exactly we're gonna study in this chapter firstly. So external commercial borrowing करने वाले depository receipt में we're gonna understand what exactly the depository receipt is. We're gonna understand depository scheme 2014, other concept, approval for depository receipt, principal document that is required for deposit DRs and miscellaneous topics. Then we're gonna do FCCB, FCEB, their concepts and difference between, and there is additional topic that we're gonna cover in this chapter. So I am covering the whole module again. So if you like my video, really do like it and subscribe more and more so that you can get the whole bunch of what I make video on. So let's start now. Firstly, it says that chapter 9 foreign funding instrument and institutions. With the name of the chapter, we are understanding that the chapter 9 says that chapter 9 is talking about foreign funding instrument and institution. Fair? Good. Now what is euro issues? Euro issue क्या होता है बेटा? Euro issue means mode of raising funds by an Indian company. Euro issue means modes of raising funds by an Indian company outside India in foreign currency. There are different modes of euro issue which is as follow. So basically we all know that well Indian company, if they has to raise funds, they can do by internally, domestically or internationally. So if they want to raise fund internationally, so in raising fund internationally as well, there are different modes. Like either they can issue depository receipt which can be in form of ADR and GDR, and they can also issue FCCB and FCEB. So euro issue is nothing but the mode of raising funds by an Indian company outside India, or mode of raising funds by Indian company internationally. So euro issue, as I said, can do it by issuing FCCB, FCEB and depositories, and then GDR. So before we further proceed with ECB, I just want to tell you all that I'm gonna be a little quick. So yeah, that is it. Alright, so we are doing right now ECB, that is external commercial borrowing. So I hope it's visible. Let me just zoom it. I hope it's good right now. Fair. Alright, so let's understand that there is one person who is eligible resident entity. I'm sorry. So there is one person, John, who is my bad. Okay, fair. चलो, एक एलिजिबल रेसिडेंट एंटाइटी कौन होगी और रिकॉग्नाइज्ड लेंडर कौन होगा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट. सो बेसिकली जॉन जो है वो रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटाइटी है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड लेंडर है. तो जॉन जो है वो फॉरेन करेंसी में भी दे सकता है पैसे और इंडियन करेंसी में भी दे सकता है. मतलब ये बेटा जी कि रेसिडेंट एंटाइटी जो है वो इंटरनेशनली रेज कर सकती है फॉरेन करेंसी में भी और INR में भी. और फॉरेन करेंसी में अगर वो रेज कर रही है, या फिर ECB जो है, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हम ले रहे हैं फॉरेन करेंसी या INR में, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 years. सो या दैट इज इट. सो फर्स्टली अंडरस्टैंड वन थिंग कि एलिजिबल बोरोवर्स कौन होंगे बेटा. एलिजिबल बोरोवर मतलब क्या कि जो लोग बाहर से इंटरनेशनली पैसा निकाल सकते हैं. तो कौन होगा वो? तो और ऑल एंटाइटीज जो कि एलिजिबल है रिसीव करने के लिए FDI, पोर्ट ट्रस्ट, यूनिट्स इन SEZ, SIDBI, Exim Bank and registered entities engaged in microfinance activities. So they are permitted only to raise INR ECB. So firstly understand one thing, who is eligible borrowers. अगर इंडियन एंटाइटी को रेज करना है फंड्स, अगर इंडियन एंटाइटी को फंड्स रेज करना है, तो कौन सी इंडियन एंटाइटी जो है वो फंड रेज कर सकती है? तो ऑल एंटाइटीज जो FDI रेज कर सकती है ना, वो ECB भी रेज कर सकती है. पोर्ट ट्रस्ट, यूनिट्स इन SEZ, SIDBI, Exim Bank और रजिस्टर्ड एंटाइटीज एंगेज्ड इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज, जो कि परमिट है जिनको परमिशन है सिर्फ INR में रेज करने के लिए ECB. Who? Registered entities engaged in microfinance activities. So this name you have to understand, you have to remember it, कि eligible borrowers that can raise ECB. So those are all entities eligible to receive FDI, Port Trust, Unit in SEZ, SIDBI, Exim Bank and registered entities engaged in microfinance activities. Fair? So now recognized lender कौन होगा? Recognized non-resident entities. Recognized non-resident entities मतलब क्या कि जिनको हम बोल रहे हैं कि ये बेटा ना ये रिकॉग्नाइज लेंडर होने वाला है, वो रिकॉग्नाइज नॉन रेसिडेंट एंटाइटीज होना चाहिए, इंडिया का एंटाइटी नहीं होना चाहिए, राइट.
अब ऐसा कौन है जो पैसे दे सकता है? तो द लेंडर शुड बी रेसिडेंट ऑफ FATF और IOSCO कंप्लायंट कंट्री। ये एक जनरल पॉइंट हो गया कि लेंडर जो है जो पैसे दे सकता है ही हैज टू अ रेसिडेंट ऑफ FATF और IOSCO कंप्लायंट कंट्री। हावेवर ये लोग भी पैसे दे सकते हैं, तो कौन? मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वेर इंडिया इज अ मेंबर कंट्री विल बी कंसीडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। मतलब ये कि कोई मल्टीनेशनल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वेर इंडिया इज अ मेंबर कंट्री, जिसका इंडिया जो है वो मेंबर कंट्री है, तो दे विल रिकॉग्नाइज्ड एज लेंडर और वो लोग पैसे दे सकते हैं। ठीक है। Individual as lender can only be permitted if they are foreign equity holder or for subscription to bond debenture listed abroad। मतलब क्या कि अगर इंडिविजुअल लेंडर बनना चाहते हैं ना, बन सकते हैं, वो भी ECB दे सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग कहाँ क्या दे सकते हैं? वो लोग इफ दे आर होल्डर ऑफ फॉरेन इक्विटी या फिर वो लोग क्या डिबेंचर बॉन्ड ये सब है, तब वो लोग ECB दे सकते हैं। ठीक है। फिर है फॉरेन ब्रांचेस जो है सबसे फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडियरी ऑफ इंडियन बैंक्स आर ऑल्सो परमिटेड एज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर ओनली फॉर फॉरेन करेंसी ECB एक्सेप्ट FCCB एंड FCB। क्या बोला मैंने? कि जो बैंक है इंडिया में, उनकी कोई फॉरेन ब्रांच सब्सिडियरी है आउट ऑफ इंडिया एंड दे वांट टू गिव ECB, दे कैन गिव ECB एक्सेप्ट FCCB एंड FCEB इन व्हाट? इन फॉरेन करेंसी आई गेस, या इन फॉरेन करेंसी। फेयर। फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडियरी ऑफ इंडियन बैंक कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट एज मार्केट मेकर या फिर अंडर राइटर provided arranges for rupee denominated bond issue overseas. However, underwriting by foreign branches subsidiary of Indian bank for issuance by Indian bank will not be allowed। क्या बोला? ध्यान से देखना जरा, समझना इधर। बोल रहा है कि फॉरेन ब्रांच सब्सिडियरी ऑफ इंडियन बैंक कैन पार्टिसिपेट एज अंडर राइटर, कि वो लोग को अंडर राइटर है या फिर मार्केट मेकिंग का काम करना है, करो। कौन मना कर रहा है? फॉर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड ओवरसीज। तो पहले क्या बोला कि भाई आप सिर्फ फॉरेन करेंसी में काम करो, लेकिन आप एज अंडर राइटर अगर आप काम करना चाहते हो फॉर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड ओवरसीज, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंडर राइटिंग जो आप कर रहे हो ना, आप फॉरेन ब्रांच सुन लो आप या फॉरेन सब्सिडी सुन लो, आप जो अंडर राइटिंग कर रहे हो ना इंडियन बैंक का फॉर इशुएंस बाय इंडियंस बैंक विल नॉट बी अलाउड। समझा आपको? कि इंडिया की बैंक है, आप उसका अंडर राइटिंग कर रहे हो फॉरेन में जाके, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है। So I hope you understood eligible borrowers and this is recognized lender. Now we would understand simply which is कि negative list मतलब ECB can be utilized for everything apart from the negative list। मतलब इसको बोल दिया eligible resident entity को, तेको ECB यूज करना है ना, कर, लेकिन ये कामों में नहीं कर सकता, बाकी देखो जो कामों में करना है कर। तो कौन सा है वो? रियल एस्टेट एक्टिविटीज में आप मत करो, इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट में मत करो। ECB रेज करके आपको रियल एस्टेट में लगाना है, ECB रेज करके आपको कैपिटल मार्केट में लगाना है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं देंगे। समझा? नहीं देंगे। आप लगा ही नहीं सकते हो, दे दिया तो भी नहीं लगा सकते हो। तो हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, नेगेटिव लिस्ट सेज दैट कि भाई आपको ECB मिल गया है, इन कामों में मत लगाओ, बाकी किसी भी कामों में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। रियल एस्टेट में मत लगाओ, कैपिटल मार्केट में मत लगाओ, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट मत करो, वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए कर सकते हो, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कर सकते हो, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन के लिए भी कर सकते हो, एक्सेप्ट लोन फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर। अब इसका क्या मतलब हुआ? पहले क्या बोला देखना, सुनना जरा, बात ध्यान से सुनना, कि नेगेटिव लिस्ट में क्या बोल रहा है कि आपको मैंने पैसे दिए, मैंने आपको ECB दिया, आपको मैंने रियल एस्टेट में लगाने के लिए दिया है, आपको मैंने कैपिटल मार्केट या इक्विटी खरीदने के लिए दिया है, आपको मैंने वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए दिया है, आपको मैंने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए दिया है, आपको रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन के लिए दिया है, नहीं दिया है इन सब चीज़ों के लिए। मैंने आपको पैसे इन चीज़ों के लिए नहीं दिया है। अगर आप ECB रेज करके रियल एस्टेट में लगाना चाहते हो, नहीं लगा सकते हो, कैपिटल मार्केट में भी नहीं लगा सकते हो, इक्विटी में भी नहीं लगा सकते हो, आप वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन में भी नहीं लगा सकते हो। इन तीनों में एक्सेप्शन क्या दिया है? एक्सेप्ट फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर। वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए आप पैसा ले रहे हो,
ले रहे हो तो बेसिकली आप उसको ईसीबी, अगर आप ईसीबी ले रहे हो तो बेसिकली आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए। लेकिन अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से पैसे ले रहे हो, ईसीबी ले रहे हो, तो आप वर्किंग कैपिटल पर्पस में लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेन इक्विटी होल्डर से आप पैसे ईसीबी रेज करके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में लगाना है, लगा सकते हो। फॉरेन इक्विटी होल्डर से ईसीबी रेज करके आपको रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन करना है, कर सकते हो। ऑन लेंडिंग टू एंटाइटीज फॉर दी अबो एक्टिविटीज, मतलब आप किसी एंटाइटी को ईसीबी रेज, मतलब ईसीबी रेज किया आपने और आप ये ईसीबी आप दे रहे हो ऐसी एंटाइटी को जो कि अबो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो वो भी नहीं कर सकते। सो डिड यू अंडरस्टैंड वन थिंग? व्हाट वी अंडरस्टूड जस्ट नाउ इज दैट कि ये एलिजिबल एंटाइटी है, एलिजिबल रेसिडेंट इंडिया के एंटाइटी है, दे वांट टू रेज ईसीबी, तो दे कैन रेज इन फॉरेन करेंसी एज वेल एज इन INR. They can ECB can be raised in the following ways, like bank loan, bonds, debentures, trade units beyond 3 years. Fair. Who can raise ECB? So eligible borrowers can raise ECB. All entities eligible to receive FDI, port trust, units in SEZ, SIDBI, Exim Bank and registered entities engaged in microfinance activities, they are permitted only to raise INR ECB. ठीक है। नाउ हु इज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर, कौन पैसे दे सकता है? तो ऐसा लेंडर जो कि रेसिडेंट है ऐसी कंट्री का, रेसिडेंट ऑफ FATF है। द लेंडर शुड बी रेसिडेंट ऑफ FATF या फिर IOSCO कंप्लायंट कंट्री। हाउएवर अगर कोई मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर इंडिया इज अ मेंबर कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। ठीक है। इंडिविजुअल एज लेंडर कैन ओनली बी परमिटेड अगर वो इक्विटी होल्डर हो या फिर बॉन्ड होल्डर हो, डिबेंचर होल्डर हो। फिर बोल रहा है दैट फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडियरी ऑफ इंडियन बैंक्स आर परमिटेड एज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर ओनली फॉर फॉरेन करेंसी। फिर बोल रहा है कि फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडियरी जो है कैन पार्टिसिपेट एज अंडरराइटर या फिर मार्केट मेकर, अरेंजर फॉर द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड ओवरसीज। However, underwriting by foreign branches of Indian bank for issuance by Indian बैंक विल नॉट बी अलाउड। मतलब इंडिया की बैंक इशू करिए, आप उसका जाके अंडरराइट कर रहे हो फॉरेन में। However, underwriting by foreign branches, subsidiaries of Indian bank for issuance by Indian bank will not be allowed कि इशू इंडिया के बैंक करिए तो आपको अलाउड नहीं है। सो दिस इज द चार्ट ऑफ ECB. आई होप इट्स विजिबल टू यू all. Then now we are understanding what exactly the minimum average maturity period is. Minimum average maturity period क्या होता है बेटा? तो minimum average maturity period होता है 3 साल का। लेकिन अगर minimum average maturity period that is MAMP आपको निकालना है for manufacturing and manufacturing sector companies, उनके लिए 1 साल का होगा ECB अप टू $50 मिलियन। क्या बोला मैंने, वापस से सुनना कि आप जो ECB रेस कर रहे हो ना, उसका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा? तो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड दैट इज MAMP विल बी 3 years. However, minimum average maturity period for manufacturing sector companies that would be 1 year for ECB अप टू, अगर आप ECB रेस कर रहे हो $50 मिलियन, तो आपका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होगा कितना? 1 साल का। 1 साल के लिए आप रेस कर सकते हो। और MAMP फ्रॉम फॉर ECB रेस फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर्स एंड यूटिलाइज फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पज, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन, तो 5 years के लिए होगा। आई होप इतना समझा कि ECB अगर आप रेस करते हो तो नॉर्मली 3 साल का रहता है कि ठीक है 3 साल का मैच्योरिटी पीरियड रहेगा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनीज ले रही है और अगर ECB अप टू $50 मिलियन तक है, अगर ECB रेस करी $50 मिलियन तक, तब तो 1 साल का मैच्योरिटी पीरियड है। और अगर ECB रेस किया जा रहा है फॉरेन इक्विटी होल्डर से एंड यूटिलाइज हो रहा है वो ECB वर्किंग कैपिटल पर्पज, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन, तो MAMP होगा 5 years के लिए। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर एनम, तो क्या होता है? बेंचमार्क रेट जो होगा उसमें 450 बेसिस पॉइंट ऐड कर दो, सो दैट वुड बी योर ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर एनम। इसमें क्या होगा? बेसिकली ECB के बारे में बताया कि ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर एनम क्या होगा। तो जो भी बेंचमार्क रेट है 450 बेसिस पॉइंट, मतलब कि जो भी वहाँ का रेट है, लेट्स से 3% है लंदन का लाइबोर का, तो 4.5% ऐड करके 7.5% वुड बी द सीलिंग पर एनम। ठीक है। अदर कॉस्ट मतलब प्री पेमेंट चार्ज, पेनल इंटरेस्ट इफ एनी फॉर डिफॉल्ट और ब्रीच ऑफ कोवेनेंट शुड नॉट बी मोर देन 2%। 2% से ज़्यादा अदर चार्जेस आप ऐड मत करो। फिर है लिमिट्स फॉर ECB। देखना ज़रा लिमिट्स फॉर ECB क्या बोल रहा है
कि जो एलिजिबल बोरोवर्स है उनका ईसीबी रेज करने का लिमिट क्या है। लिमिट भी तो होगा ना कुछ, आप ऐसे तो नहीं अंधाधुंध पैसे खींच लोगे इंटरनेशनली, कुछ तो लिमिट होगा। तो वही बताने की कोशिश की गई है, जो एलिजिबल बोरोवर है, इफ यू वांट टू रेज ईसीबी, ही कैन रेज ईसीबी USD up to USD 750 million और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर अंडर ऑटोमेटिक रूट। मतलब ये बेटा जी कि अगर आपको ईसीबी रेज करना है तो दो रूट हो गए, अप्रूवल रूट, ऑटोमेटिक रूट। अगर आप ऑटोमेटिक रूट से अगर आपको ईसीबी रेज करना है तो आप एलिजिबल हो रेज करने के लिए अप टू USD 750 मिलियन। वहीं पे अगर आपको रेज करना है, देखना यहाँ पे, एलिजिबल बोरोवर कैन रेज फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी फ्रॉम डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर। ओके, लाइबिलिटी इक्विटी रेशियो अंडर ऑटोमेटिक रूट वुड बी 7:1। देखना अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसके बाद उसके नीचे का भी बताती हूँ। सो फर्स्टली इतना बोलने की कोशिश कर रहा है, भाई साहब आपको ईसीबी रेज करना है क्या। मैंने बोला करना है। बोला ऑटोमेटिक रूट से करना है क्या। मैंने बोला हाँ। बोला ऑटोमेटिक रूट से 750 मिलियन तक कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पर फाइनेंशियल ईयर, और उससे ज़्यादा करना है तो भाई फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई से। फिर नेक्स्ट क्या बोल दिया आपने को कि जो एलिजिबल बोरोवर है ही कैन रेज फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी फ्रॉम डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर, जिसका ऑटोमेटिक रूट से वो कर सकता है। 7:1 का रेशियो रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है, जो अगर कोई एलिजिबल बोरोवर है, लेट्स से मैं हूँ, मुझे ईसीबी रेज करना है फॉरेन इक्विटी होल्डर से। कैन आई रेज? यस आई कैन रेज, आई नो दैट। लेकिन कौन सी लाइबिलिटी इक्विटी रेशियो क्या होगी मेरी, और मैं ऑटोमेटिक रूट से कर सकती हूँ इतना, ठीक है, वो भी ठीक है, मुझे पता है। 7:1 मतलब क्या बेटा जी, कि अगर मैं 1 करोड़ मतलब ये कि 1 करोड़ इक्विटी शेयर है तो 7 करोड़ ईसीबी आई कैन रेज फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर। Are you understanding one thing, that foreign equity holder, एलिजिबल बोरोवर जो है वो रेज कर सकता है फॉरेन करेंसी डेनोमिनेटेड ईसीबी फ्रॉम डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर, लाइबिलिटी इक्विटी अंडर ऑटोमेटिक रूट, और लाइबिलिटी इक्विटी रेशियो वुड बी 7:1। मतलब ये कि 1 करोड़ इक्विटी शेयर है इसका, इक्विटी होल्डर का, तो मैं इससे 7 करोड़ का रेज कर सकती हूँ from foreign equity holder. However, this condition is not applicable in case outstanding amount of all ECB पे करना बाकी है, including proposed one अभी का मिला के up to USD 5 million और equivalent। अगर इतना अमाउंट मेरा ऑलरेडी पेंडिंग है देना प्रपोज्ड का मिला के, तो फिर मैं ये इक्विटी फॉरेन इक्विटी होल्डर से मैं ये 7:1 मैं रेज ही नहीं कर सकती हूँ बेसिकली। फॉरेन इक्विटी होल्डर से 7:1 छोड़ दो, मैं रेज ही नहीं कर सकती हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि लिमिट ऑफ ईसीबी पूछा कि कितना लिमिट में आप रेज कर सकते हो, तो USD 750 मिलियन डॉलर जो है या उसके इक्विवेलेंट एक फाइनेंशियल ईयर में एलिजिबल बोरोवर रेज कर सकता है ईसीबी, और अंडर ऑटोमेटिक रूट। उससे ज़्यादा करना है तो प्लीज़ आप अप्रूवल रूट में चले जाओ। अगर आपको फॉरेन इक्विटी होल्डर से रेज करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेन डिनोमिनेटेड में कर सकते हो, अंडर ऑटोमेटिक रूट कर सकते हो। लाइबिलिटी 7:1 होगा, मतलब ये कि 1 करोड़ इक्विटी शेयर है इसके पास तो 7 करोड़ ईसीबी आप रेज कर सकते हो। लेकिन ये कंडीशन जो है वो नहीं एप्लीकेबल होगा इनकेस आपके पास आउटस्टैंडिंग, अगर इसके पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ऑल ईसीबी मिला के प्रपोज्ड वाला USD 5 मिलियन या उसके बराबर है, तो ये इक्विटी जो है ये जो है ईसीबी रेज नहीं कर सकता किससे, फॉरेन इक्विटी होल्डर से। खत्म। फिर आना यहाँ पे फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी और INR डिनोमिनेटेड ईसीबी क्या है, तो एक्सचेंज रेट क्या होगा। तो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी है, मतलब आप डॉलर में आप ईसीबी रेज कर रहे हो, मतलब ये कि अगर आप डॉलर में रेज कर रहे हो तो चेंज ऑफ करेंसी ऑफ फॉरेन करेंसी ईसीबी इनटू INR ईसीबी द एक्सचेंज रेट विल बी, मतलब ये बेटा जी आपको सिंपल सा देखना है एक्सचेंज रेट क्या होगा। एक्सचेंज मतलब क्या, फॉरेन करेंसी में से INR में चेंज कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, तो प्रिवेलिंग रेट ऑन द डेट ऑफ द अग्रीमेंट। प्रिवेलिंग रेट कौन सा प्रिवेल होगा, जो डेट ऑफ द एग्रीमेंट पे रेट था ना वो रेट प्रिवेल होगा। अगर आप फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी का एक्सचेंज रेट पूछ रहे हो मुझसे कि भाई फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी क्या और INR डिनोमिनेटेड ईसीबी में क्या है, क्या बताया, तो मॉड्यूल में इस तरह से दिया है कि इफ यू टॉक अबाउट एक्सचेंज रेट, तो इफ यू चेंजिंग द करेंसी ऑफ फॉरेन करेंसी ईसीबी इनटू INR ईसीबी द एक्सचेंज रेट विल बी द डेट विल बी द रेट ऑन द डेट ऑफ द अग्रीमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉर कन्वर्जन टू रुपी एक्सचेंज रेट शेल बी द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। ये हम INR डिनोमिनेटेड ईसीबी की बात कर रहे हो कि अगर आप ईसीबी रेज कर रहे हो रुपीज में,
तो फॉर कन्वर्जन टू रुपी एक्सचेंज रेट शैल बी द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। यहाँ पे डेट ऑफ अग्रीमेंट, यहाँ पे डेट ऑफ सेटलमेंट याद रखने की जरूरत है। फिर हेजिंग प्रोविजन में क्या बोला है, दैट एंटाइटीज रेजिंग ईसीबी रिक्वायर्ड टू फॉलो गाइडलाइंस इशूड बाय सेक्टरल प्रूडेंशियल रेगुलेटर। फिर बोला है इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सपोजर infrastructure space companies shall mandatorily hedge 70% of their ECB exposure in case of average maturity of ECB is less than 5 years। तो क्या बोलने की कोशिश हुई है यहाँ पे कि फॉरेन करेंसी एक्सपोजर में बोल रहा है कि अगर आपके पास फॉरेन करेंसी आपने ECB रेज किया हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कंपनी ने स्पेस कंपनी को मैंडेटरीली हेज करना उसका 70% ऑफ देयर ECB एक्सपोजर, अगर उसका मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 5 years है, तो designated AD category bank shall verify 70% of hedging requirement is complied and report to RBI in form ECB2। सबसे पहले देखना यहाँ पे क्या बोला है, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB। तो अगर आप चेंज करा रहे हो, चेंज ऑफ करेंसी ऑफ फॉरेन करेंसी ECB टू INR ECB, द एक्सचेंज रेट वुड बी वॉट, तो जो कि डेट होगा अग्रीमेंट का। सेकेंड बोला है कि जो एंटाइटी है जो रेस कर रही है ECB, वो उनको फॉलो करना है क्या, तो गाइडलाइंस जो कि सेक्टरल या फिर प्रूडेंशियल रेगुलेटर ने दिया, जैसे कि RBI हो गया। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सपोजर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कंपनी है उसको मैंडेटली हेज करना पड़ेगा 70% ऑफ देयर ECB एक्सपोजर इन केस एवरेज मेच्योरिटी ऑफ ECB इज लेस देन 5 years। अगर मोर देन 5 years है, अप टू 5 years है, तो हेज करने की जरूरत नहीं है। एवरेज मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 5 years है तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कंपनी को मैंडेटरीली 70% क्या करना पड़ेगा बेटा, हेज करना पड़ेगा। और एडी कैटेगरी बैंक चेक करेगी कि 70% जो हेजिंग रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई किया है या नहीं, और अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट करेगी किसको, RBI को, इन द फॉर्म ECB2। फिर है हेजिंग प्रोविजन इधर। सो द ओवरसीज इन्वेस्टर्स आर एलिजिबल टू हेज देयर एक्सपोजर इन रुपी थ्रू परमिटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट विथ AD कैटेगरी 1 बैंक इन इंडिया। द इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो एक्सेस द डोमेस्टिक मार्केट through branches of foreign banks with Indian presence on back-to-back basis। Understand what does it say? Hedging provision बता रहा है कि जो ओवरसीज इन्वेस्टर है, जो ओवरसीज इन्वेस्टर है मतलब इंटरनेशनल इन्वेस्टर, वी आर टेकिंग जॉन एज एन एग्जाम्पल। तो जो जॉन है वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ओवरसीज इन्वेस्टर आर एलिजिबल टू हेज देयर एक्सपोजर इन रुपी थ्रू परमिटेड डेरिवेटिव। अगर उनको हेज करना है कर सकते हैं क्या, रुपीज में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AD से पूछ लो ना कर सकते हो या नहीं। इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो एक्सेस द डोमेस्टिक मार्केट थ्रू ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स। भाई जो फॉरेन बैंक की ब्रांचेस है इंडिया में, आप उनके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेजिंग प्रोविजन। सो वी आर डन विद दिस पेज एज वेल। आई होप इट्स विजिबल, आई do really hope it's visible. Yeah. So now we have got parking of ECB proceeds. First understand what exactly the parking word means. पार्किंग मतलब क्या कि लेट्स से एक एग्जांपल देती हूँ। आप गाड़ी लेके गए हो मार्केट में, ठीक है, आप फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे हो, आपको कुछ सामान चाहिए, आपने गाड़ी पार्क की फटाफट टेम्परेरी पर्पस के लिए, फिर आप गाड़ी लेके वापस घर पे आ गए और अपने पार्किंग में पार्क कर दिया या यूटिलाइज कर दिया, जो भी कर दिया परमानेंटली, ठीक है। तो पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड्स का अंडरस्टैंड करना, अब्रॉड में है और इंडिया में तो क्या डिफरेंस है। ECB प्रोसीड्स मीन ओनली फॉर फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर कैन बी पार्क्ड अब्रॉड पेंडिंग यूटिलाइजेशन। मतलब ECB आपने रेस किया लेकिन अभी आपने ECB को यूटिलाइज नहीं करना है 7 months के लिए। आपने 7 months के लिए बोला कि अभी इसको इंडिया में लेके जाऊंगा, फिर कन्वर्जन कराना पड़ेगा। मेरा तो एक्सपेंडिचर ही फॉरेन करेंसी में होने वाला है क्योंकि मेरी तो ब्रांच ही फॉरेन ब्रांच है, इसके लिए मैंने पैसे रेस किए थे, इसी के लिए मैंने ECB रेस किया था। मैं इसको इंडिया में लेके आऊँ फिर खर्चे कराऊँ, क्या मतलब है। अब मुझे ये पैसे लेंड करने, पार्क करने किधर, जिससे मेरे को एटलीस्ट थोड़ा बहुत इनकम आते रहे। तो ECB प्रोसीड्स मीन ओनली फॉर फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर कैन बी पार्क्ड अब्रॉड पेंडिंग यूटिलाइजेशन। अभी तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं करा है, पार्क किया है थोड़े टाइम के लिए। So till utilization these funds can be invested in the following liquid assets। मतलब क्या, अभी तक आपने ECB को यूज नहीं किया है, आप यूज नहीं करना चाहते हो, आपने पार्क किया है टेम्परेरीली के लिए। टिल यूटिलाइजेशन आपका ये जो ECB है वो इन जगहों पे पार्क हो सकता है। अगर आप जो ECB रेस किया है आपने, अगर वो आपने फॉरेन एक्सपेंडिचर के लिए किया है तो, ठीक है। सो डिपॉजिट सर्टिफिकेट या फिर प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय बैंक, कोई भी डिपॉजिट सर्टिफिकेट ले लो या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो बैंक ने ऑफर किया है, रेटेड नॉट लेस देन AA- एंड AA3 बाय व्हाट, तो स्टैंडर्ड पुअर एंड फिट जो है तो AA- और बाय मूडीज तो फिर AA3।
तो इनकी रेटिंग से कम वाले डिपॉजिट सर्टिफिकेट में या फिर प्रोडक्ट्स जो ऑफर कर रहे हैं बैंक में, आप इन रेटिंग से कम में आप पार्क नहीं कर सकते। सेकंड बोला है ट्रेजर बिल एंड अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपको पार्क करना है तो ठीक है आप कर सकते हो, आप ट्रेजर बिल एंड अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट में कर दो, ऑफ 1 ईयर मैच्योरिटी होता है जिसका, और उनका भी सेम रेटिंग होना चाहिए। जिस ट्रेजर बिल एंड मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हो तो उनका भी ये रेटिंग होना चाहिए कि AA- बाय स्टैंडर्ड पुअर एंड फिच, AA3 बाय मूडीज, इससे कम में है तो फिर आप वहाँ पे भी नहीं पार्क कर सकते। डिपॉजिट्स विद फॉरेन ब्रांचेज अब्रॉड सब्सिडियरीज ऑफ इंडियन बैंक, मतलब क्या कि आप डिपॉजिट कर रहे हो क्या बेटा, आप डिपॉजिट कर रहे हो कहाँ बेटा, आप डिपॉजिट कर रहे हो अपनी ही फॉरेन ब्रांच में या फिर सब्सिडियरीज ऑफ इंडियन बैंक्स अब्रॉड। समझा कि आप जो है ना, आपका यूटिलाइजेशन बाकी है, यूटिलाइजेशन पेंडिंग है आपका, वो ECB आपने जो रेज किया है, तो आपने ये पैसे डिपॉजिट कर दिए अपनी फॉरेन ब्रांच को जो कि सब्सिडियरी है इंडियन बैंक्स की। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि इंडियन बैंक की कोई सब्सिडियरी है, कोई फॉरेन ब्रांच है अब्रॉड में, उसके साथ भी आप पार्क कर सकते हो क्या, डिपॉजिट कर सकते हो क्या, अपना जो ECB है वो आप पार्क कर सकते हो। आई होप अंडरस्टूड। फिर देखना यहाँ पे क्या बोला है, अगर आपने ECB रेज किया है फॉर रुपी एक्सपेंडिचर, पैसे आपको खर्चे रुपी में करने हैं, आपने उसके लिए रेज किया है, तो आप पार्क किधर करोगे? तो firstly it has to be repatriated immediately for credit to their rupee account with AD category bank in India। ठीक है, पहले तो रिपाट्रिएट कर लो। पार्क किधर कर सकते हो? तो 2 जगह पार्क कर सकते हो। ECB आपने जो ECB बोरोवर जो है can park ECB proceeds in term deposit for a maximum period of 12 months cumulatively with AD category bank in India, AD category 1 bank in इंडिया की। अगर ECB बोरोवर जो उसको ECB जो उसने रेस किया वो उसको पार्क करना है तो AD कैटेगरी 1 बैंक के पास कर सकता है मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए क्यूमुलेटिवली। दीज टर्म डिपॉजिट शुड बी केप्ट इन अनएनकम्बर्ड पोजीशन, अनएनकम्बर्ड पोजीशन पे इसको पार्क करना है। अब देखना यहाँ पे प्रोसीजर फॉर रेजिंग ECB की, अगर आपको रेज करना है क्या ECB आपको रेज करना है तो क्या प्रोसीजर होगा, या तो आप ऑटोमेटिक रूट से ECB रेज कर लो या तो फिर आप अप्रूवल रूट से रेज कर लो। अगर आप ऑटोमेटिक रूट से रेज करना चाहते हो ECB तो उसका क्या प्रोसीजर है, अप्रोच करो ना AD कैटेगरी 1 बैंक को, उनका प्लस देयर प्रपोजल ड्यूली फिल्ड इन ECB फॉर्म। आप जो दिस इज वेरी कॉमन कि आपको ECB रेज करना है तो ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट से कर लो, अप्रूवल रूट से करना है तो AD कैटेगरी 1 बैंक के पास जाओ, ECB फॉर्म में जो भी प्रपोजल है आपका फाइल करके लेके जाओ। अप्रूवल रूट में क्या है कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा RBI इन्फॉर्म ECB फॉर एग्जामिनेशन थ्रू AD कैटेगरी 1 बैंक। तो आप RBI को डायरेक्ट दे सकते हो क्या? नहीं, तो आपको जो भी आपका एप्लीकेशन है वो आपने दे दिया AD1 बैंक को, AD1 बैंक देगी RBI को। एप्लीकेशन इज प्लेस्ड बिफोर द एम्पावर्ड कमिटी कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल या इंटरनल मेंबर्स। RBI का ही फाइनल डिसीजन होगा कि कितना देना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है। सो द नेक्स्ट दैट वी हैव गॉट इन दिस रिगार्ड इज कि बोरोविंग्स अंडर ECB फ्रेमवर्क्स आर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। कि बोरोविंग करना है ना ECB का तो ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, इसको कंप्लाई करना पड़ेगा बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कि लोन रजिस्ट्रेशन नंबर, चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ECB, इसके लिए आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। LRN के लिए चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ECB कुछ होता है, मंथली रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शंस, late submission fee for delay in reporting and standard operating procedure for untraceable entities. So all these things you have to report on। ठीक है, ECB देखना आप क्या बोल रहा है, ECB should happen only after obtaining the LRN from the Reserve Bank। देखना क्या बोल रहा है, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर की ECB should happen only after obtaining loan registration number from the Reserve Bank। To obtain the LRN, borrower are required to submit duly certified from ECB which also contain terms and conditions of the ECB and to AD category 1 बैंक। फिर AD1 बैंक जो है फॉरवर्ड करेगी ये कॉपी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग वन थिंग कि लोन अग्रीमेंट का कॉपी नहीं देना है आपको, आपको क्या देना है, आप ECB तभी कर सकते हो जब आपने लोन रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है रिजर्व बैंक से, और वो लोन रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ECB का फॉर्म जो है सूटेबल फॉर्म विद टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ECB वो आपको देना पड़ेगा AD कैटेगरी 1 बैंक को। जो AD कैटेगरी 1 बैंक है वो उसका कॉपी किसको फॉरवर्ड करेगी बेटा, RBI को फॉरवर्ड करेगी। चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ECB अगर कुछ होता है तो दैट हैज टू बी रिपोर्टेड टू RBI थ्रू रिवाइज्ड फ्रॉम ECB एट दी
अर्लीस्ट इन एनी केस नॉट लेटर देन 7 days, मतलब कोई भी चेंजेस होता है आपके ईसीबी के टर्म्स एंड कंडीशन में 7 दिन के अंदर अंदर किसको बताना है, आरबीआई को बताना है. मंथली रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन, आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका मंथली रिपोर्टिंग भी आपको देना है. सो द बोरोवर आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एक्चुअल ईसीबी ट्रांजैक्शन थ्रू फॉर्म ईसीबी टू रिटर्न थ्रू द एडी कैटेगरी 1 बैंक ऑन मंथली बेसिस. मंथली बेसिस पे एडी 1 बैंक को आपको रिपोर्टिंग करना है किसके बारे में, मंथली ट्रांजैक्शंस के बारे में. अगर कोई भी बोरोवर जो है वो इन कंप्लायंस ऑफ ईसीबी एनी बोरोवर हु इज अदरवाइज इन कंप्लायंस ऑफ ECB guidelines can regularize the delay in reporting of drawdown of ECB proceeds before obtaining LRN, or delay in submission in form ECB 2 returns by payment of late submission fees. तो वही है कि भाई LRN लेने में आपने देर कर दी या फिर ECB 2 फॉर्म फाइल करने में लेट कर दिया तो आपको लेट सबमिशन फीस देना पड़ेगा. फिर है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर अनट्रेसेबल एंटाइटीज. So if this is the case, what would be the standard operating procedure for untraceable entities? So who are found to be in contravention of reporting provision of ECBs by failing to submit prescribed return under the ECB framework either physically or electronically for past 8 quarters or more. तो बेसिकली इट सेज दैट कि अनट्रेसेबल एंटाइटीज कौन होगी, जो कि 8 quarters और मोर उससे ज़्यादा क्या नहीं दे रही है, रिपोर्टिंग नहीं दे रही है. ठीक है, चलो. Powers delegated to AD category 1 bank to deal with ECB cases. तो changes of the AD category 1 bank मतलब कि AD category 1 bank existing कोई और है उसमें change लाना है, न्यू के पास जाना है, तो AD category देखना है यहाँ पे क्या बोला है. AD 1 bank can be changed subject to obtaining no objection certificate. जो existing AD category 1 bank रहेगा उससे NOC ले लो और चले जाओ दूसरों में चेंज कर लो AD 1 bank, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैंसलेशन ऑफ LRN. So the designated AD1 bank may directly approach DSIM for cancellation of LRN for ECBs contracted subject to ensuring that LRN has taken place and monthly ECB2 returns till date in respect of allotted LRN have मतलब ये है कि LRN आपको कैंसिल करवाना है, आप करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ECB2 आपने फाइल बराबर किया है क्या अभी तक मंथली बेसिस में, और आपने जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन था, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं करने के लिए वो आपने टिल डेट करी है क्या, आरबीआई को सारी चीज़ें फाइल करी है क्या. तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज पावर डेलीगेटेड टू AD1 बैंक टू डील विथ ECB केसेस. तो अगर चेंज होगा AD कैटेगरी 1 बैंक में तो AD कैटेगरी 1 बैंक से NOC ले लो. कैंसिलेशन करना है LRN का तो AD1 बैंक के पास जाओ. नेक्स्ट इट इज टॉकिंग अबाउट रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ECB. कि एग्जिस्टिंग ECB है उसको रीफाइनेंस करने के लिए आप फ्रेश ECB ले रहे हो, चलेगा क्या, परमिटेड है क्या, तो चलेगा, परमिटेड भी है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. AD1 बैंक जो है वो अलाउ करता है रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ECB बाय रेजिंग फ्रेश ECB प्रोवाइडेड दी जो आउटस्टैंडिंग मेच्योरिटी है ओरिजिनल बोरोइंग की इज नॉट रिड्यूस्ड एंड ऑल इन कॉस्ट fresh ECB is lower than all in cost of the previous one, existing one. Borrower is eligible to raise ECB under the extent framework and Indian Bank को भी परमिशन दिया है रीफाइनेंसिंग करने के लिए ECB का, ओनली फॉर हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स AAA वाले और फॉर महारत्न नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. ठीक है, next we are doing conversion of ECB into equity. So understand what does it say, that conversion of ECBs including those which are matured, जो मैच्योर हो गई लेकिन अनपेड है, इनटू इक्विटी इज परमिटेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, दैट द एक्टिविटी ऑफ द बोरोइंग कंपनी इज कवर्ड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर FDI फेयर. सिंपल सी चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो एक्टिविटी है बोरोइंग कंपनी का, मतलब जिस कंपनी ने बोरो किया था ECB, अब वो उसको इक्विटी में कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द बोरोइंग कंपनी इज कवर्ड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर FDI और गवर्नमेंट हैज़ गिवन द अप्रूवल. Are you understanding the activity of borrowing company? जो borrowing company है उसका activity has to be covered under the automatic route of FDI. Then only it can convert the ECB into equity. या फिर government ने approval दिया तो भी चलेगा. Conversion should be with lenders' consent, fair, without any additional cost, should not result in contravention of eligibility and breach of any applicable sectoral cap. ठीक है, एप्लीकेबल प्राइसिंग गाइडलाइंस फॉर शेयर्स आर कंप्लाइड विद, कि आप ECB को चेंज करा रहे हो ना इक्विटी में, तो प्राइसिंग गाइडलाइंस को फॉलो किया है क्या. फिर इन केस ऑफ पार्शियल और फुल कन्वर्जन ऑफ ECB इनटू इक्विटी, रिपोर्टिंग टू द व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स टू द RBI अंडर दिस. So if you're doing partial, so in case if you're doing partial conversion, in case if you're doing full conversion,
in case you're doing conversion of ECB into equity in phases. So if you're doing partially, you have to make sure that you are reporting under what FCGPR, and also you're doing monthly reporting to RBI and ECB2. सब में सेम है. एंटायर पोर्शन इज टू बी रिपोर्टेड. अगर आप फुल्ली कर रहे हो तो पहले तो जितना कन्वर्टेबल पोर्शन है सिर्फ उतना ही आपको FCGPR में रिपोर्ट करना है. अगर आप फुल कन्वर्जन कर रहे हो तो एंटायर पोर्शन आपको रिपोर्ट करना है FCGPR में, और रिपोर्ट भी आपको देना पड़ेगा ECB2 में विथ रिमार्क्स. और अगर आप फेजेस में करा रहे हो तो FCGPR और ECB2 रिटर्न जो जाएगा वो भी फेजेस में जाएगा. फिर इधर एक पॉइंट है दैट कन्वर्जन ऑफ ECB ड्यूज इनटू इक्विटी एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ द अग्रीमेंट. ये पहले भी कर चुके हैं. फिर है ECB फैसिलिटी फॉर स्टार्टअप. अगर स्टार्टअप कंपनी है उनको ECB रेज करना है, कैन दे डू सो? येस, दे कैन डू सो. तो एंटाइटी फर्स्टली दे हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड फॉर देम वुड बी 3 years. रिकॉग्नाइज लेंडर कौन होंगे? रेसिडेंट ऑफ FATF या फिर कंप्लायंट कंट्री. बाकी लोग नहीं. कौन? रेसिडेंट ऑफ FATF या फिर FATF कंप्लायंट कंट्री. हाउएवर इंडियन एंटाइटी जो है हैज़ मेड ODI, दैट इज इंडियन एंटाइटी ने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है ओवरसीज एंटाइटी में या फिर फॉरेन ब्रांचेस में या फिर सब्सिडियरीज में, शेल नॉट बी कंसीडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर. तो क्या बोलने की कोशिश हो रही है यहाँ पे? पहली चीज तो मैंने ये देखी यहाँ पे कि अगर कोई स्टार्टअप ECB रेज करना चाहता है तो दैट स्टार्टअप हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज स्टार्टअप. फर्स्ट थिंग. सेकंड, दे हैव टू हैव द एवरेज maturity period like 3 years. Minimum average maturity period would be of 3 years. Recognized lender would be whom? So recognized lender would be whom? तो he would be resident of FATF compliant country. लेकिन कोई इंडियन एंटाइटी है जिसने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिया है ओवरसीज एंटाइटी को, फॉरेन ब्रांचेस को, सब्सिडरी अब्रॉड को ODI दिया है, तो क्या उससे वो ECB रेज कर सकती है? तो शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर. दे कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड लेंडर फॉर द इंडियन एंटाइटी. The borrowing can be in the form of loans, non-convertible, optionally convertible या फिर partially convertible preferences. Borrowing per startup कितना होगा? तो $3 million या फिर equivalent in per financial year, either in INR या फिर convertible foreign currency और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो मतलब एक स्टार्टअप जो है वो 1 साल के अंदर 3 मिलियन तक का ले सकती है क्या? 3 मिलियन USD का ले सकती है क्या बोरोइंग? ये वो INR में ले सकती है, फॉरेन करेंसी में ले सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ में भी ले सकती है. ठीक है. ECB फैसिलिटी फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या? ये नेक्स्ट अलग ही क्वेश्चन है. ये स्टार्टअप का था ना. दिस इज ECB फैसिलिटी फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या है? सो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है दे कैन रेज ECB फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड लेंडर विद मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 years अंडर ऑटोमेटिक रूट विदाउट मैंडेटरी हेजिंग एंड ओवरऑल सीलिंग फॉर सच ECB अप टू $10 million और इक्विवेलेंट. तो इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है? अगर ये 3 मार्क के लिए आ गया लेट्स से क्वेश्चन एग्जाम में, जो कि आता भी है कि ECB की क्या फैसिलिटी है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, तो जो कॉमन है वो याद रखो ना कि जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी है दे कैन रेज ECB फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड लेंडर. मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड 3 होगा, थ्रू अप्रूवल रूट होगा विदाउट हेजिंग. इतना तो कॉमन सेंस वाला है. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है. दैट इज ओवरऑल सीलिंग फॉर सच ECB दैट वुड बी $10 million और इक्विवेलेंट. ये थोड़ा सा लर्निंग वाला है. So let's understand the other topic which is depository receipt. ये एक न्यू टॉपिक है. Let's understand what exactly this is. So let's say Reliance है, ये depository है. Alright. So firstly what does it say कि Reliance है, Reliance ने इसको 1 लाख शेयर्स दिए depository बैंक को UK की, और इसने पेमेंट कर दिया. अब ये जो डोमेस्टिक, आई होप इट्स विजिबल फर्स्ट, लेट मी जस्ट zoom it. I hope it's now. सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि रिलायंस ने इसको 1 लाख दिए, इसने पेमेंट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर्स दिए, पेमेंट कर दिया. अब जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है अपॉइंटेड, ये फर्स्टली आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट डिपॉजिटरी रिसीट. डिपॉजिटरी रिसीट जो है वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो होता है वो अपने कंट्री के लोगों को देता है, जैसे कि फॉरेनर्स को. ठीक है. अब डिपॉजिटरी रिसीट पिक्चर में क्यों आता है? जब रिलायंस कंपनी है, अगर रिलायंस कंपनी जो है वो डायरेक्टली अगर फॉरेन शेयर होल्डर्स को देना चाहे तो दे तो सकते हैं, लेकिन उन फॉरेन शेयर होल्डर्स को दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी. अब हर एक शेयर होल्डर सेबी के साथ रजिस्टर होगा शेयर्स देने के लिए, तो वो कोई नहीं करेगा. दैट इज वाई द डिपॉजिटरी बैंक्स कम्स इन टू द पिक्चर. तो डिपॉजिटरी बैंक आती है, वो रजिस्टर होती है, सेबी रजिस्टर्ड होती है,
और वो शेयर्स लेके, इक्विटी शेयर्स लेके अपने यहाँ के लोगों को देती है डिपॉजिटरी रिसीट. सो दैट इज द डिपॉजिटरी रिसीट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. फिर यहाँ पे डोमेस्टिक कस्टोडियन अपॉइंटेड टू डू द रजिस्ट्रेशन एंड अकाउंट कीपिंग, डोमेस्टिक कस्टोडियन जो होगा. ठीक है. फिर ये जो GDR इशू किया है ना ये लोग को, फॉरेनर्स को, सो दीज डिपॉजिटरी रिसीट आर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट. द डिपॉजिटरी रिसीट डू नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ इट्स ओन. इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग सिक्योरिटी दैट इज शेयर्स. एंड इनको सारा बेनिफिट मिलेगा. जो भी इन्वेस्टर्स है ना जो डिपॉजिटरी रिसीट ले रहे हैं, वोटिंग राइट्स को छोड़ के सारा इकोनॉमिक लाइक डिविडेंड ये सारा बेनिफिट मिलेगा, बोनस वगैरह. वोटिंग राइट नहीं मिलेगा बस. डिपॉजिटरी रिसीट दो टाइप की हो सकती है. स्पॉन्सर्ड DR हो सकता है, अनस्पॉन्सर्ड DR हो सकता है. स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट मतलब इंडियन कंपनी का है स्टॉक अग्रीमेंट ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के साथ. और कैपिटल रेजिंग हो सकती है, नॉन कैपिटल रेजिंग हो सकती है. फर्दर स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट जो है ना बेटा, स्पॉन्सर्ड मतलब क्या होता है कि इंडियन कंपनी जो है ना वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के साथ स्टॉक अग्रीमेंट करे. उसमें दो वे है कि कैपिटल रेज करके या नॉन कैपिटल रेजिंग. मतलब इंडियन कंपनी फ्रेश शेयर्स दे रही है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को और बदले में कैपिटल रेज कर रही है. मतलब स्पॉन्सर्ड है ना, मतलब इंडियन कंपनी सामने से दे रही है, या तो फ्रेश शेयर्स देगी या तो मार्केट से एक्वायर करके देगी. सो इंडियन कंपनी रेजिंग fund by issuing the fresh shares, that is capital raising. non capital raising इंडियन कंपनी थ्रू ट्रस्ट शेयर्स दे दिए ODB को और उसको पैसे मिल रहे, खत्म. नॉन कैपिटल रेजिंग. अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट मतलब इंडियन कंपनी का कोई भी स्टॉक अग्रीमेंट नहीं है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के साथ. ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो है वो इंडियन शेयर होल्डर्स से शेयर्स परचेज करके अपने यहाँ पे डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर रही है. तो डिड वी अंडरस्टैंड कि इसमें क्या होता है स्पॉन्सर्ड में कि कंपनी सामने से दे रही है स्टॉक अग्रीमेंट करके शेयर्स दे रही है. यहाँ पे कंपनी शेयर्स नहीं दे रही है, कंपनी नोन नहीं है ओवरसीज डिपॉजिटरी रिसीट के. ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक दे आर इशूइंग they are taking the shares from Indian shareholders and then doing the depository receipt to their country shareholders, investors. Further, the unsponsored depository receipt can be listed or unlisted. Listed or unlisted कहाँ? उनके stock exchange पे. तो further they can be listed or unlisted. Now let's understand the depository receipt scheme 2014. So what does it say basically?